for you personally, and it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. Sir, you will be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was the railway minister, that Taratala Joka, I inaugurated this along with I invited Pratibha Patilji, the then president. And also I must thank today the then Kolkata Corporation chairman, Shobhan Chattopadhyay, because he collected all the land for this Joka rail station, for Taratala rail station, and my urban minister Firhad Hakim. And sir, other 3 projects also you are inaugurating today. I am very happy that Dankuni, Shaktigor, or Chabdani, Boichi, or Ammani Phalakata, all are material modification program. Third line I started, it is in 2010 budget and 2010 and 11 budget. Everything was there, and today I lay the foundation stone. It is 2000, when Lotolji was the Prime Minister, 2099 or 2000, 2001, and some projects in 2009 and 10 and 11 also. Out of 5 projects, sir, 4 projects in my time. But now you are inaugurating, I am very happy. At least it is completed, and I kept money for the pink book so that this project should not be overlap or it should not be stopped. One new train you have given Vande Bharat today. It is very good. I thank you so much for this, and also the railway minister and GM Eastern Railway. My honorable governor is also here, and the other ministers are also here, and the public representatives. Today I should not forget the sacrificing of the Behala people. 10 years they suffered because the railway construction work was going on. And that time, some shopkeepers, the hawkers, the passengers, how they suffered. And today, their dream, আমার স্বপ্নের program, আজকে implemented হচ্ছে, আমি বেহালাবাসী সহ সারা পশ্চিম বাংলাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। And sir, you will be happy when I was a railway minister, I submitted one white paper and also one 2010 vision. That vision document, railway minister must be knowing that 50 world-class station is being kept there, along with that Jalpaiguri is also was there. So I'm very happy that Bengal is getting this, and there are so many other 49 world-class stations. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा।
सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी, पूजनीय माताजी श्री हीराबेन को शत शत नमन, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। जी हाँ, एक बहुत दुखद खबर सुबह आती है। 3:30 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का निधन हो चुका है और जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि लगातार कल से कयास लगाए जा रहे थे, कल से पूजा अर्चना की जा रही थी, बनारस में हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया था ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर को जो मंजूर है वही होता है और अंत में वही देखने को मिलता है। जी हाँ, आज सुबह निधन की खबर से पूरा देश स्तब्ध है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस निधन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता है उसको याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसका जीता जाता एग्जाम्पल, जीता जाता उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपने कर्मों से दिया है। जी हाँ, आपको भी दर्शकों याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका मतलब साफ तौर पर इसका जो उदाहरण है वो देखने को मिला है। एक काल आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के ऊपर और कहीं ना कहीं उनको इस दुनिया से दूर करके लेकर जाता है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो कविताएं हैं, इसकी जो पंक्तियां हैं वो असल जिंदगी में भी साबित करते दिखाई दे रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। गीत नया इसलिए क्योंकि मैं बता दूं आपको जानकर हैरानी होगी कितने अडिग, कितने कर्तव्य पथ पर निश्चल भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं और अपनी माताजी के निधन के बाद अंतिम संस्कार करने के बाद अपने कर्तव्य पथ पर लौट जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास को, उनकी माताजी के दिए हुए संस्कार को ये दर्शाता है कि भूलना दिलचस्प नहीं होगा। जिस तरीके से आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री इतनी जनता का नेतृत्व करते हैं और उनके उदाहरण पेश करते हैं कि किस तरीके से आखिर किसी भी दुख की घड़ी में इंसान को कितनी मजबूती दिखानी चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्र हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्पर रहते हैं, कहा जाता है कि बिना थके, बिना हारे प्रधानमंत्री निश्चल भाव से देश प्रेम में व्यस्त रहते हैं, देश प्रेम के लिए काम करते रहते हैं। आज उसका उदाहरण देखने को मिला है और पूरे भारत को इस पर गर्व महसूस हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 3:30 बजे उनकी माता का निधन होता है और प्रधानमंत्री करीब 9 बजे अपनी माताजी का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद अपने वो कर्तव्य पथ पर लौट जाते हैं, जहां देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साफ तौर पर ये आपको बता दें दर्शकों किस तरीके से उनकी दृढ़ निष्ठता को दिखाता है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के निधन पर शोक जताया है, जिस तरीके से उनके लिए लिखा है, यही दर्शाता है कितने ताकतवर, कितने ज्यादा दृढ़ निश्चयी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है, मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय, अपूर्णीय क्षति है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। इसके साथ ही आपको कि जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए हैं, जेपी नड्डा ने एक बात लिखी है जिससे आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा कि कितने निश्चल भाव से देश सेवा में प्रधानमंत्री तत्पर रहते हैं। जेपी नड्डा लिखते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी के निधन पर गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। हीराबा जी का संघर्ष पूर्ण और सात्विक जीवन सदैव प्रेरणा देने वाला है, जिनके वात्सल्य और सत्य निष्ठा से देश को यशस्वी नेतृत्व मिला। मां का जाना अपूर्णीय क्षति है, इस रिक्तता की पूर्ति असंभव है। देखिए, एक लाइन में उन्होंने ये व्यक्त कर दिया है कि उनकी माता जी का जो जीवन था वो काफी ज्यादा सादगी भरा था और जिस तरीके से उनका जो जीवन है सदैव प्रेरणा देने वाला ही दिखाई दिया, क्योंकि हमने अक्सर दर्शकों तस्वीरों में देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता जी के चरणों में शीश नवाते थे, उसके बाद ही कोई अपने बड़े कामों को करते थे। इसके साथ ही जिस तरीके से जेपी नड्डा ने लिखा है कि वात्सल्य और सत्यनिष्ठा से देश को यशस्वी नेतृत्व मिला, तो कितनी महान
होंगी उनकी माताजी, जिनके गर्भ से एक ऐसा पुत्र मिला है जो पूरे भारत का डंका विश्व में बजा रहा है और इसके साथ ही पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है। तो उनकी माताजी को एक बार फिर से दर्शकों शत शत नमन, और उनके लिए हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनको प्रभु अपने श्री चरणों में जगह। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त किया है, इसके बाद ही कर्तव्य पथ की अगर बात करते हैं दर्शकों, तो अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उनका निधन होता है और उसके बाद पल पल की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता जी का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद ही पूरी तरीके से अपने कर्म पथ पर लौटते हैं और देशवासियों से माफी तक मांगते हैं। ये दर्शाता है कि कितना महान व्यक्तित्व, कितने बड़े दिल के नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ अपने माता जी का जाना, वो उस अपूर्णीय क्षति को बर्दाश्त कर रहे हैं और एक तरफ देश की सेवा, दोनों उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका जीता जाता एग्जाम्पल, जिसके लिए तस्वीरें वायरल हो रही है कि किस तरीके से माताजी का संस्कार करने के बाद प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जनता से माफी तक मांगते हैं कि अपने निजी काम की वजह से मैं आज आप लोगों से जुड़ नहीं पाया, इसके लिए मैं समस्त भारतवासियों से क्षमा प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जाता है, मजबूती की बात यहां सामने आती है कि एक छोटी सी चोट लगने पर इंसान दर्द से करा जाता है, लेकिन एक तरफ उनकी माता जी चली जाती हैं और अपने वो कर्म पथ पर लौट आते हैं। इसके बाद ही आपको बता दें, कर्म पथ पर ही नहीं, वो देश की जनता को सौगात देते हैं। अंतिम विदाई देने के बाद कर्म पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए, जहां बंगाल को उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है और इसी के साथ वहां देखा गया कि किस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का जाना असहनीय है। इस दुख की घड़ी में हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आज देश का विपक्ष पक्ष प्रधानमंत्री को समर्थन दे रहा है, उनकी माता जी के लिए मंगल कामना कर रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम से जुड़े 7800 करोड़ की सौगात बंगाल की जनता को दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज मुझे आप सबके बीच रूबरू होना था, लेकिन निजी कारणों की वजह से आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। बता दें कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था और इसी के दौरान आज ये सौगात प्रधानमंत्री ने पूरे पश्चिम बंगाल को दी है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए अनंत प्यार, उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई वंदे भारत ट्रेन को और देखा गया कि किस तरीके से अपने कर्तव्य पथ पर लौटे। और इसी की वजह से केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि पूज्य माता श्री हीराबेन जी का बेटा निष्काम भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित कर्म योगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं। कहीं ना कहीं पूरा जोश भरते हुए प्रधानमंत्री अपने नेताओं में, पूरे भारत के नेताओं में दिखाई देते हैं कि अपने कर्म के लिए इंसान को कितना दृढ़ निश्चयी और संकल्पित होना चाहिए। तो आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताइए। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता पर पूरा देश स्तब्ध है और उनके लिए श्रद्धांजलि और सुमन अर्पित कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।